very good evening to one and all present here for this class. Let us begin today's session. It is all up on Right to Information Act 2005. Friends, in the beginning, we are going to see one-page ultra revision with the facts, figures, and sections that normally is given there. Sections are also very important. This is since a revision class, so it is expected that you have already studied yourself through RTI. You have gone through, you have seen some of the videos or the PDF you have already studied. It is understood. And then directly we begin with the quiz and interview questions, theoretical questions that will help you in descriptive question. But some of our friends, I do believe, have not attended the previous lecture or they have not prepared. And even if you are blank on RTI, this session, this class will help you a lot, because in first 4 slides, I'm going to sum up the things for your quick revision. You may not be getting the complete idea, but the one who have already studied will definitely be getting everything. So let us begin friends. हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इनएक्टमेंट की हम बात करते हैं एंड कमेंसमेंट. So this RTI Act was enacted on 15th of June 2005. It came into force on 12th of January 2005. Enacted 15 January, याद रखेंगे, 15 June, sorry, and came into force on 12th of October. Repealed, it is actually duplication of Freedom of Information Act that was already there in our Constitution of India since 2002. And constitutional basis, what is the constitutional basis of it? इसे बिल्कुल याद रखेंगे, 19(1)(a. It is taken from freedom of speech. लैंडमार्क केस की बात करें कि क्यों आवश्यकता हुई, कैसे हुई, या किस, जिसे हम मील का पत्थर कहें, तात्कालिक कारण कहें, that is SP Gupta versus Union of India. That case was there in the year 1982. उसके बाद में हम इसी में ही हम बात कर लेते हैं पेनाल्टीज की. यदि इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन ऑन टाइम, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन ऑन टाइम, penalty section is also there, that is section 20. 250 rupees per day fine is there, and maximum penalty of 25,000 rupees. Can recommend disciplinary action also against public information officer, and burden of proof lies on PIO, that is public information officer. It is mentioned in RTI Act section 19(5). Good evening, sir. Good evening, madam. Very good evening. So now, about time. नमस्कार देवांगन सर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. राजीव जी, सादर नमस्कार जी. नमस्कार. यदि अलगदास साहब कक्षा में मौजूद हैं या कभी भी आए तो मुझे नमस्कार जरूर करें. हम बात करें या बता दें मुझे कि आप उपलब्ध हैं कक्षा में. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. बिल्कुल. अच्छा, अलगदास साहब मौजूद हैं जी. अलगदास सर मौजूद हैं क्या कक्षा में? पवार जी, यदि अलगदास साहब ज्वाइन करते तो मुझे कृपया सूचित करें. चलिए हम दोस्तों. जी सर. जी, मेरी आवाज स्पष्ट है, वीडियो भी क्लियर है, हम आगे बढ़ें इसी तरीके से. जी सर. जी दोस्तों, ये बिल्कुल भी वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, बोरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आप बीच बीच में कुछ भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, चर्चा का विषय बना सकते हैं, और फिर जब हम प्रश्न में आ जाएंगे केवल तब रेस्ट्रिक्शन है कि आप शांत रहें, बाकी बीच में आप कभी भी बोल सकते हैं. So let us go friend. टाइम लिमिट की हम बात करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs पर्पस. सर पहले वाला है ना, वो ध्यान से सुन लेते हैं. देवांगन सर, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये हम ध्यान से सुन लेते हैं, क्योंकि यहीं से तो हमें पढ़ के आगे टेस्ट देना है. अच्छा अच्छा. इसीलिए हम सब शांत हैं. ओके 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 फाइन. मतलब तूफान की पहले की शांति है तो ये शांति बरकरार रहे. ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक है. सो वी विल गो अहेड फ्रेंड्स विद टाइम लिमिट. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Normal RTI reply is to be given within 30 days. That is must. And then filed through CAPIO. What is CAPIO? Let me clarify it. It is Central Assistant Public Information Officer. Central Assistant Public Information Officer.
वैसे इसका SAPIO भी होता है, स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसका CPIO भी होता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और वैसे ही SPIO भी होता है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये आपके नॉलेज के लिए है। तो अगर CAPIO के थ्रू फाइल किया गया है तो 30 डेज में 5 डेज और प्लस हो जाएगा, और टोटल ये हो जाएगा 35 डेज। थर्ड पार्टी कंसल्टेशन की बात आती है, दैट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 11, मैक्सिमम 40 डेज में आपको रिप्लाई देना ही होगा। थर्ड पार्टी नोटिस की जब बात आती है तो इट शुड बी गिवन विद इन 5 डेज। ये थोड़ा सा याद रख लेंगे। फर्स्ट अपील इज टू बी डन विद इन 30 डेज, सेकेंड अपील विद इन 90 डेज। आपने अपील कर दिया, 30 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं मिला, विद इन 30 डेज आप अपील करेंगे। नहीं मिला, सेकेंड अपील आपकी विद इन 90 डेज। सेक्शन 4 डिस्क्लोज करता है विद इन 120 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट। ह्यूमन राइट्स की हम बात करें तो देयर आर सेक्शन 24 बॉडीज बात करता है विद इन 45 डेज। तो दोस्तों ये टाइम लिमिट था। आगे अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, सुनते रहिए। आप न केवल सीखेंगे बल्कि आपके उत्तर भी तैयार होंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज नोन एज CIC, इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, और कमिटी में चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में विपक्ष के नेता, एंड कैबिनेट मिनिस्टर, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ये जो CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें जो चीफ ऑफिसर है उसको प्लस उसके साथ ही साथ अधिकतर 10 अधिकारी हो सकते हैं। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कमिश्नर IC, और एक हो गया CIC। तो यूं कह लीजिए CIC तो एक होगा और IC कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 9। तो टोटल उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है 10। टेन्योर की बात करें, 5 साल का उनका टेन्योर होता है या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। सैलरी की हम बात करते हैं, इट इज इक्वलेंट। CIC की जो सैलरी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वलेंट होती है, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी होती है, सिंपल सी बात है, मेंबर की सैलरी मेंबर की तरह और चीफ की सैलरी चीफ की तरह। इलेक्शन कमिश्नर से इसे आप जोड़ सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया पिंक रूप में आपको पिंक बोर्ड में समथिंग इज देयर फॉर यू टू रीड। इंपॉर्टेंट सेक्शंस फेवरेट फॉर इंटरव्यू फ्रेंड्स, सेक्शन 4 है। 17 कैटेगरीज आर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स। सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी एक्ट चालू हुआ तो पहले से डिस्क्लोजर कीजिए। आप क्या काम कर रहे हैं, कितनी लागत है, कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, क्या क्या है। 17 कैटेगरीज में आपको इंफॉर्मेशन को पहले से बता के रखना पड़ेगा, ताकि उस इंफॉर्मेशन के लिए किसी को RTI ना लगाना पड़े। So 17 categories are proactive disclosure. Reduce need to file RTI, ताकि RTI कम से कम फाइल की जा सके। सेक्शन 6(2) कहता है नो रीजन रिक्वायर्ड फ्रॉम एप्लीकेंट। आप जब एप्लीकेशन दे रहे तो आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, ये रीजन आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये कौन कहता है? सेक्शन 6(2). सेक्शन 7(6) ये कहता है डिले इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपने इंफॉर्मेशन देने में डिले कर दिया तो भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो इंफॉर्मेशन डिलीवर करना होगा। दोस्तों मैं समझ रहा हूं और ये समझते जा रहा हूं, या आई एम अंडर इंप्रेशन कि आप चीजों को समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, साथ में चीजों को समझ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्जाम्पशंस। भाई कुछ कुछ सेक्शन को एग्जाम किया गया तो एग्जाम में क्या इंक्लूड है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सोवर्जिनिटी एंड सिक्योरिटी, कोर्ट restricted information you cannot ask, trade secrets you cannot ask, fiduciary relationship you cannot ask. Let me explain what is fiduciary relationship. ये मतलब होता है लीगल और एथिकल पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट। इस चीज के बारे में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते और कैबिनेट पेपर्स को नहीं मांग सकते। लेकिन इन सब में भी एक वर्ड यूज हुआ है, आप देखिए क्या यूज हुआ है, बट में बहुत सारी चीजें आ गई दोस्तों। देखिए बट सेक्शन 8(2) सेज पब्लिक इंटरेस्ट शुड ओवरराइड। व्हाट इट शुड ओवरराइड? सेक्शन 8(3) कहता है
आफ्टर 20 years इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज। 20 साल तक भाई ठीक है, आपने दबा के रख दिया, नहीं दिया सोवर्जिनिटी के नाम पे, एंड देन फ्रेंड्स यू कैन लिसन मी, आई होप। जल्दी से मुझे कोई बताए। यस सर। ओके ओके ओके, एक जगह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं यहाँ से तो डिस्कनेक्ट नहीं हो गया मैं। आफ्टर 20 years इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज एक्सेप्ट, अच्छा इसमें भी एक्सेप्ट है, सिक्योरिटी रीजन वाले को, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को और कैबिनेट पेपर्स को 20 साल बाद भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये 81A 81C और 81 का 1 ये सारी बातें कहता है। सीवियरेबिलिटी, सीवियर कितना है? इफ रिकॉर्ड कंटेन्स एग्जम्प्ट प्लस नॉन एग्जम्प्ट इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन एग्जम्प्टेड है, कुछ इंफॉर्मेशन नॉन एग्जम्प्टेड है, तो प्रोवाइड नॉन एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन। नॉन exempted information must be provided to the candidate, to the one who is seeking information. This must be done. No blanket rejection allowed. Blanket rejection is not allowed. ये blanket rejection क्या है, कोई मुझे explain करेगा अगर किसी ने पढ़ रखा है? It's a phrase actually, friend. It is just a phrase that lets you think of it. So what does it mean? It means, anyone? It means that you cannot reject all the information asked by a person. As you earlier said, that if somebody asks the information which falls into two categories, non-exempted or exempted, so you need to provide the those information, those sections or information which actually come into non-exempt portion, leaving the exempted portion. Very good, sir. Who is that, sir? May I know, please? Sir, this is RP Anand, sir. RP Sahab. Fantastic. जी. Let me clarify. Thank you, sir. Let me make it more explicit कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि जो नॉन एग्जेम्प्टेड है वो तो आपको देना है, इसमें आपका सीबीआई आ गया, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आ गए, ये सारी चीजें आप ये नहीं कह सकते कि दे आर नॉन एग्जेम्प्टेड। यू नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। सेक्शन 10 सेज दिस। सेक्शन 11 की हम बात करते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होता है? नोटिस विद इन 5 days आपको देना है, थर्ड पार्टी रिप्लाई विद इन 10 days, डिसीजन विद इन 40 days और पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड पॉसिबल है। ध्यान रखेंगे। थर्ड पार्टी पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। थर्ड पार्टी पे यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ कि थर्ड पार्टी कौन होता है। हु इज थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी आप किसे कहेंगे? एनीवन और शेल आई? सर जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर जब कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है और वो आपके डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट से आपको लेनी है, दैट इज थर्ड पार्टी। एनीवन एल्स प्लीज? I think no, sir. Shall I speak, sir? हाँ, प्लीज प्लीज कैलासन जी। ना, हु इज देयर सर? Sir, it's me again. ओके, आरपी साहब। Yes, sir. I think suppose we are working as a principal in some institution, and any outside person asking for information related to our department, our office, but one such information is being asked about are related to a teacher, suppose. So that person could be, I think, third party. Am I right, sir, or not? Let me. सर, पहले तो थर्ड पार्टी का जो डिस्क्रिप्शन आया है आप लोग सभी याद रख लीजिए, सेक्शन 2N। थर्ड पार्टी डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन सेक्शन 2N। वे टॉक ओके सर, ओके, है ना, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड पार्टी इज अंडर सेक्शन 2N एंड थर्ड पार्टी मीन्स of RTI Act, it includes any person or entity other than the applicant making the request in the public authority, the government department। वही बात है जो आपने कही है कि आप प्रिंसिपल हैं और किसी और व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन मांगी है और
किसी थर्ड पर्सन के बारे में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है कि आपके स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसके बारे में जानकारी दी। आपकी स्कूल की जानकारी तो आपकी जानकारी हो गई, और ये हो गया आपका थर्ड पार्टी। एम आई क्लियर सर? एम आई क्लियर टू ऑल द फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। Okay, sir. सर गॉट अ डाउट। Yes. सर इसमें स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर कौन है ये तो वहीं से आ जाएगा, लेकिन यदि हम इसमें ये पूछें कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका लाइसेंस किस टाइप का है, Yes, yes, तो वो yes. थर्ड पार्टी में आना चाहिए ना? Yes, 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 yes. Exactly. वही मेरा तात्पर्य वही था। That is what I ओके wanted सर, to गॉट tell you. गॉट। Yes, yes, madam. हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ना ओवरराइड की हम बात करते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट 9। दोस्तों आप इंजॉय करना चालू करेंगे जब हम एमसीक्यू देंगे। केवल एमसीक्यू बैठ के एबीसीडी करना नहीं है हमको, या तुक्के नहीं लगाना है, उसके लिए हमें बेसिस भी चाहिए। दैट इज वाई इन द फर्स्ट 2 क्विज आई स्टार्टेड डायरेक्टली विद द क्विज, but then later on I found there are many friends who have not seen this particular topic. That is why I have started this 1 page 2 page revision. So what do you think better? I should directly start with the quiz, or this revision method is better? No sir, this is not much better. Okay, fine. No, sir, this is better. Sir, this method is far better. Sir, this method is good. Good. Okay. Gaurav ji, I'll give you time to speak, please. Just wait for, let me finish first. दोस्तों रिवीजन का ये जो दौर है, आप आज कुछ नया पाने वाले हैं। जैसे ये रिवीजन खत्म होगा, उसके बाद एक ऐसा पेज आप देखेंगे, डेफिनेटली यू वुड लव टू वॉच दैट पेज। Just be patient for 3 minutes more, and a page will appear on your screen that the very next day you are going to take print out and going to paste it somewhere where you study. That I promise you, without getting into that page. Let us see. Section 24 says exempt organizations कौन-कौन से हैं? 22 intelligences and security bodies are exempted, completely exempted. But यहाँ पे भी everywhere but word is there. Corruption cases and human right violations must be disclosed. You cannot say it. अच्छा, corruption in the intelligence bureau is there, or there is a question of human right in the intelligence bureau and security bodies. Even that is to be declared, because that does not harm the security of the country, sovereignty of the country. अपील सेक्शन की हम बात करते हैं। अपील सेक्शन का जिक्र सेक्शन 19 में हुआ है दोस्तों। फर्स्ट अरे भाई कहे जा रहे, कहाँ चला गया भाई? अपील, फर्स्ट अपील विद इन 30 days, I made it clear, to senior officer. सेकेंड अपील विद इन 90 days to CIC and SIC. हाँ, अपील किसे करेंगे भाई? मैंने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी, आपने नहीं दी, तो अब मैं अपील करूंगा आपसे सीनियर को। अब सीनियर ने भी नहीं दी, तो सेकेंड अपील किसको होगी? सीधा सीधा CIC या SIC. Is it clear, friend? Mangilal ji, yes. Wait a minute, sir. Let me finish. Commission powers. Section 19(8) says commission can directly disclose, can make direct disclosure, can impose penalty, and can recommend disciplinary action, and can award compensation. ये कौन करेगा? कमीशन। अब कमीशन में दोनों चीजें आ गई दोस्तों, CIC भी आ गया और SIC भी आ गया। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों को ही यह अधिकार रहेगा इन देयर जुरिडिक्शन। अंतिम कंप्लेंट सेक्शन की हम बात करते हैं। कंप्लेंट इज गिवन इन सेक्शन 18. नो PIO is appointed. Direct complaint can be done when PIO in some office is not appointed, or no response is received, or excessive fee is charged, or false information or hypothetical information is given. Commission can summon records for all these things before imposing the penalties. Definition generally asked. ये डेफिनेशन जो है दोस्तों जनरली पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, इंफॉर्मेशन में क्या क्या मांग सकते हैं आप? रिकॉर्ड मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, ईमेल मांग सकते हैं, लॉग बुक मांग सकते हैं, सर्कुलर मांग सकते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग सकते हैं। क्या नहीं मांग सकते? हाइपोथेटिकल ओपिनियन नॉट ऑन रिकॉर्ड. Hypothetical opinion which is not on record, you cannot ask for that.
एग्जाम ट्रैप की बात करते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिए, जितना दिमाग में आता है। नॉर्मल आरटीआई 30 डेज में आंसर हो जाते हैं। लाइफ और लिबर्टी की बात आ जाती है तो उस क्वेश्चन का आंसर 48 आवर्स में आपको मिल जाना चाहिए। मैक्सिमम पेनाल्टी कैन बी 25,000, 120 डेज सेक्शन 4 डिस्क्लोजर, 90 डेज सेकेंड अपील, 30 डेज फर्स्ट अपील, 20 ईयर्स रूल सेक्शन 8(3) की 20 ईयर के बाद में आपको इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। जो क्या वर्ड यूज किया था मैंने, याद कीजिए, कोई बताइए। जो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है उसे एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड वर्ड मैंने यूज किया था। 5 डेज इफ फाइल्ड बाय CAPIO, यदि आप सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू करते हैं तो जो 30 डेज है उसमें प्लस 5 डेज और बढ़ जाता है तो उसकी लिमिट 35 डेज हो जाती है। 5 ईयर टेन्योर होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, या 65 ईयर्स अटेनेबल। Public interest override exists, always it is there. After reading these all friends, what you are able to, अभी तक आपने जो पढ़ा सर, ये जी सर, जी मोंगिया मांगीलाल CAPIO सर क्या होता है? जी, CAPIO कौन होता है सर ये? हाँ, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CIC और SIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चलिए, आफ्टर रीडिंग ऑल दिस दोस्तों, यदि आपने इसमें से मिस किया है, लेट ज्वाइन किया है, व्हेन आई विल पोस्ट द वीडियो डू वॉच इट, अदरवाइज सच क्वेश्चन विल अराइज। यदि आपने नहीं सुना है, इस प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आएंगे, आप देख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यू कैन आंसर ऑल द लिमिट MCQs, यू कैन एक्सप्लेन सेक्शन 8 and 8(2) क्लियरली व्हाट इट इज। नहीं तो फिर से PDF में जाएं। यू कैन एक्सप्लेन पेनल्टी मैकेनिज्म, you can explain appeal system, you can explain third party procedure, you can answer the interview questions on the constitutional basis, you can explain section 22 override, and you can also discuss RTI versus official secret act. तो दोस्तों ये था रिविजनल पार्ट। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का, बट बिफोर वी गो टू MCQ, फ्रेंड्स किसी का माइक चालू है, प्लीज बंद कर लें। Sir, there is one suggestion or Please. kind of correction, please, if you allow me. Please, sir. Sir, as I think most of people may have same thing as I have having right now. Please. Because 2005, Right to Information Act was passed originally, but later developments occurred, and in 2019 there was some amendment into this act. Sir. And some of the powers have been taken by the central government itself regarding the tenure or the pay. So I request kindly just also indicate towards those changes which made under this newly amendment act, please. Please, sir. Amendments. Sir. Yes, sir. Made. Hello. Hello, sir. May I? Please. Hello. Yes. Carry on, please, sir. May I, sir? Sir, please carry on. Hello. See, sir, I have the latest copy of the RTI Act, which was updated on 17/5/2021. Great, sir. Right? Yes. तो मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ये एक्ट है, एक्चुअली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की एक PDF ऑलरेडी गूगल पे मिल जाएगी। जो लास्ट मेरे पास अपडेटेड कॉपी है 17/5/2021 की है, राइट? एंड आई डोंट थिंक उसके बाद कोई अमेंडमेंट आया है RTI एक्ट में। सर, आई हैड मेड अ ठीक है। रिक्वेस्ट। यस सर, आई हैड सर मे आई इंटरप्ट सर, ये एक आया है DPDP एक्ट 2023, तो उसकी वजह से ना सिर्फ एक अमेंडमेंट और आ गया जो RTI में भी आएगा एज इट इज। उसके अलावा मेरी नॉलेज में भी कोई चेंज नहीं आया है। राइट। वो मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हैं
उसमें exemption मतलब in 2005 act personal information could be disclosed if it had a relationship to public activity or if public interest is there. Like, but in 2023 it is mentioned कि the digital personal data protection act के according तो ये RTI का भी इसमें amendment हो गया कि all personal information is exempt from disclosure. और इसकी वजह से जो हमारे स्कूलों में इम्पैक्ट आया है वो ये है कि nobody could ask the staff attendance records, salary slips या स्टूडेंट्स का डाटा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन स्कूल से नहीं ले सकेगा. Alright. तो इट हैज बिकम अ पर्सनल इंफॉर्मेशन सॉरी शील्ड. मैडम टू इंटरप्ट यू, है ना? मैं आई प्लीज. यस सर. पर्सनल राइट टू प्राइवेसी ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, उसके अंदर आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, इट मींस लेट अस से आधार नंबर, मोबाइल नंबर, but the students whose name who are admitted, who on what ground they are admitted can be taken. जो उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते, बट दूसरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स पर्सनल डाटा आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग वो अबाउट नहीं द मांग पर्सनल सकते. डाटा. राइट. और दूसरा मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा, अभी जो थर्ड पार्टी की चल रही थी, सॉरी टू करेक्ट यू सर, मैसेज आया तो मैंने सुना नहीं शायद, आई मे बी रॉन्ग, है ना? Other than any citizen, all right to information is applicable only to the citizen of the India, not to any other than citizen. तो third party means इसमें लिखा है a person other than citizen making a request for information. Citizen के अलावा सब third party है. नहीं तो सर जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो नहीं मांग सकता इन्फॉर्मेशन. नहीं आप यू हैव टेकन इट अदर वे. सी Who is third party? हो सकता है मैंने समझने में या सुनने में गलती की हो, बट ये जो जी बहुत अच्छी बात है. सेक्शन 2N की डेफिनेशन कहती है थर्ड पार्टी मींस पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स पब्लिक अथॉरिटी. हाँ, ये अब आपने सही बोला. आप सिटीजन वर्ड पे एम्फेसिस मत कीजिए, उसको सिटीजन के बजाय पर्सन भी कहें तो भी चलेगा. द वन हु इज आस्किंग द इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट पार्टी. The one from where he is asking the information is the second party, and the person about whom it is asking the information is the third party. Am I clear, sir? सर लेकिन तीनों वो जो है ना इंडियन सिटीजन होने चाहिए. Obviously तीनों इंडियन सिटीजन ही होंगे भाई. आप इंफॉर्मेशन जो भी मांग रहे हैं इंडिया, नहीं तो अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो फिर उस पर ये लागू नहीं पड़ेगा. So we will not ask any information about So outside citizenship. It has nothing to do with citizenship, sir. Don't aid it. Yes, don't yes. No, sir. सर अगर कोई फॉरेनर मांगता है इन्फॉर्मेशन तो उसको नहीं देनी है. He has no right to information. सर वो तो सर सिटीजन वर्ड लिखा है डेफिनेशन में. यू आर करेक्ट सर. सिटीजन वर्ड इज देयर इन डेफिनेशन. हाँ, ममता मैम, आई हैव अ डाउट. यस मैम. Yes, हाँ मैम, जैसे पर्सन वर्ड हम लोग कॉमर्स में पढ़ते हैं, तो पर्सन मे बी एन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ कंपनी. तो अगर कोई फर्म आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रही है तो वो इस क्राइटेरिया में आएगी क्या मैम? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू टेक एनी इंफॉर्मेशन. I think no, ma'am. How the non-living person can ask information? मैम सर, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर राइट, किया जाता कॉमर्स है. में होता है कंपनी के आर्टिफिशियल पर्सन. हाँ, तो क्या एक कंपनी कोई इंफॉर्मेशन ले सकती है? नो, पर्सन मींस हियर लिविंग पर्सन. Person को being a citizen of India, आपको How information company देनी can be a होगी. citizen? Being a citizen of India, ma'am. Sir, that was my doubt. हाँ, Yes. No. Being a person- citizen of India, we can get information only. sir. Yes, absolutely correct. The only thing is a person can seek information from an institution, and on behalf of an institution, a person only will reply. ठीक है ना? तो आप एक इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे नहीं, बल्कि द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल बी आस्किंग. द वन हु इज आस्किंग इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल. द वन हु इज आस्किंग इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल.
I think it is clear now. Yes, sir. Thank you, sir. Fine. So Thank you, sir. Thank you. Right, sir. Thank you to you, Yes, sir, Manvilal yes, ji, sir. for enlightening everything explicitly, clearly. Friends, if you remember, I had given one very good suggestion to everyone. Like we had announced it yesterday, we are going on RTI. So if anybody had anything new, could have shared then and there, so that we could include it. Actually, it is Gaurav ji. Yes, Gaurav ji, go ahead. थैंक यू वेरी मच सर। थर्ड पार्टी जो के लिए जो कंफ्यूजन था, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू कोशिश करूंगा जी, उसको क्लियरिफाई करने के लिए। साथियों ने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत सिंपल एक पीआईओ होता है, सिटीजन बात बिल्कुल सही है। एज ए पीआईओ मैंने इंफॉर्मेशन मांगी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पीआईओ के पास ही है, तो एक केस ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है कि वो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पीआईओ के पास नहीं है, वो दूसरे के पास है, तो उस केस में थर्ड पार्टी बनता है। एक मैं बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ कोट करना चाहूंगा। मैं एक इंडियन सिटीजन हूं। आई हैव अप्लाइड एन आरटीआई टू ए पर्टिकुलर, सपोज दैट केवी नंबर 1 about the employee or anything related to the KV number 1 that is come under to the that PIU. Now second case is there. I am a citizen. I have applied an ITI to the KV number 1, but there is some information that is not related to the KV number 1, that is related to the another organization or any other institution, like an example KV2. Then the PIO of the KV1 will ask the information from the KV number 2. It means the citizen is not asking the information from the KV2. This is the case of the third party. Exactly right. Gaurav ji, thank you very much. Sir, Friends, can I interrupt here? Sure, sir. As Gaurav sir is saying, suppose someone is asking one information from KV number 1 about the information KV number 2. Sir, first of all, KV number 1 and KV number 2, they are different PIOs, and Definitely. they have right to disclose the information of their own institution. So Definitely. this, I think हम सब लोगों ने सुना होगा कि जब कोई इंफॉर्मेशन, कोई एप्लीकेशन गलत जगह चली जाती है, तो उसको हम उस दूसरे उस राइट व्यक्ति के पास हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसके लिए हमें 5 या 10 डेज का टाइम मिलता है। आरपी जी, you are right. आरपी जी, बट सर मेरे अनुसार as far as I can understand, सर, मैं एक एग्जांपल के साथ समझना चाहूंगा आपको। सर, सपोज हम लोग प्रिंसिपल्स हैं किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, और वहां पर मेरा एक एम्प्लॉय है। उस एम्प्लॉय के बारे में एक दूसरा कोई थर्ड व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि कृपया आप हमें बताएं कि वो फला व्यक्ति कितने बजे कॉलेज से निकल गया था और अभी वर्तमान में वो कहाँ है। तो ये सर थर्ड व्यक्ति की इंफॉर्मेशन हुई। जब तक मैं उस थर्ड व्यक्ति से लिख करके पूछ नहीं लूंगा 5 डेज के अंदर, तब तक मैं उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा। सर मेरे अनुसार तो ये है सर थर्ड पार्टी। नहीं सर, ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी ही नहीं जाती। इंफॉर्मेशन हमेशा आपके पास पहले मैं से ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन, मेरा कहने का मतलब है कि ये भी पूछ सकते हैं वो। everyone please, Yes. everyone please listen carefully now. If you had listened me very carefully in the beginning, this question of third party would not have arisen. Everyone has their own opinion, means everyone has their own examples, and you are all trying to clarify third party. I made it very clear. ध्यान से सुनिए। जैसे कि अभी गौरव जी ने जो एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद आरपी साहब ने जो कहा, आरपी साहब ने कि KV1 की इंफॉर्मेशन हम KV2 से कैसे मांगेंगे। KV2 का अलग पीआईओ है, आप KV2 से डायरेक्टली मांग सकते हैं। ये थर्ड पार्टी का केस नहीं है, ये थर्ड पार्टी का केस नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी व्यक्ति ने, जैसे आप कानपुर में काम करते हैं, कानपुर के किसी सिटीजन ने केंद्रीय विद्यालय, वहां का जो केंद्रीय विद्यालय है, उसके प्रिंसिपल से इंफॉर्मेशन मांगी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है कौन है, कौन सी फर्म है, उसके कितने एम्प्लॉइज आपके यहाँ काम करते हैं, या उसकी और कहाँ ये कॉन्ट्रैक्टर के और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, कौन कौन से केवी में है,
Now this is the information that he does not know, and he wants to know about the contractor, and contractor is anyhow related to your KV. So इसका जो PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, आपका प्रिंसिपल है, ये कपिल जी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं. कपिल जी इज फर्स्ट पार्टी, इंफॉर्मेशन देने वाला इज सेकेंड पार्टी, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है दैट इज द थर्ड पार्टी. वेरी सिंपल एग्जांपल इज देयर. और इसके बाद yes sir very nice. किसी और एग्जांपल की जरूरत. अच्छा, दूसरी बात, आप बैठे हैं, यू आर फ्री एनफ टू गूगल इट एंड टू पेस्ट आर टू स्पीक आर टू सी, बट गिविंग डिफरेंट एग्जांपल्स इज नॉट द थिंग. कंसेप्ट को हमको समझना है कि थर्ड पार्टी का कंसेप्ट कौन है. फर्स्ट पार्टी जो पूछ रहा है, सेकंड पार्टी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, थर्ड पार्टी जिसके बारे में पूछा जा रहा है. दैट्स ऑल. I don't think any discussion is needed. Agree, friends? If you agree, Sir, we'll go I ahead. think you should continue. सेक्शन 11 पढ़ लें सब लोग RTA एक्ट का. That's all. और ये मैं शुरू में बिल्कुल क्लियर कर चुका था when we were discussing about third party. One question will also be there. So friends, you are all requested to listen patiently, carefully. You are always welcome to put forward your views with the different examples. We are enlightened with that, but at the same time we have to take care of the timing also of these many people. We are there all together. दोस्तों, आप सभी की इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं. Yes sir, please continue with the MCQ. जी सर. Yes sir. एक डाउट इसमें है, इसमें आरटीआई एक्ट में ये कहा गया था कि नो कोर्ट शैल इंटरफियर इन द आरटीआई एक्ट, और सर जो अभी अमेंडमेंट आई है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन में, इसको शायद चैलेंज किया हुआ है और अभी फरवरी 2026 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. तो इसका मतलब कि ये है कि क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट अब कर सकता है आरटीआई एक्ट के ऊपर, वो नो कोर्ट वाला हट जाएगा? ये थोड़ा सा चंचल जी, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है. Let us keep it for the discussion at the end. I have noted down your question, and we are going to discuss it. And friends, let us go for MCQs. Everybody is ready, I suppose. 10 मिनट में हम जल्दी से MCQs खत्म करेंगे. Before we go to MCQ, देखिए दोस्तों, ये आपके लिए एक पेज है. ये यहाँ पे आपको पूरा क्लियर विजिबल नहीं है, तो मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ. देखिए इधर इस पेज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आप बाद में डिटेल से पढ़ लीजिएगा इसको. दिस इज फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे इसमें इस पेज में इनेक्टमेंट कब हुआ, कौन से आर्टिकल्स हैं, टाइम लिमिट क्या है, सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 10 क्या कहता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, पेनाल्टी क्या है, सेक्शन 8. इन वन पेज आई हैव ट्राइड टू कंपाइल इट. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एट ए ग्लांस, ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे. एंड दिस इज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर you friends. You can go through, you can revise it. I hope you liked this idea of one page. This one page will clarify every minute detail that can be asked in your MCQs and all other things. So that's all in the revision section, friends. Let us go ahead with the MCQs that we had been doing it. ये एक पेज है जिसे मैंने इसी पीडीएफ में इंक्लूड किया है. पीडीएफ के साथ ही साथ आपको ये मिल जाएगा. चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं. नाउ टेक योर पेन एंड कॉपी प्लीज, एंड 30 सेकेंड फॉर वन क्वेश्चन. आई विल बी रीडिंग एंड यू विल बी गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस. यस, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? 4 dates are given, A, B, C, D. Please mark your answer. Now, under the RTI Act 2000, an applicant seeking information is not required to give. उसे क्या देने की आवश्यकता नहीं है? His her name and contact address, the particulars of the information sought, the prescribed application fee, or any reason for requesting the information. Friends, question number 3. The competent authority for the House of the People, that is Lok Sabha, under the RTI Act is, कौन है भाई? The Speaker of Lok Sabha, the Prime Minister of India, the President of India, the Secretary General of Lok Sabha. Now, question number 4. Under section 1,
Under section 7(1), information must ordinarily be provided within 30 days. Where life and liberty of a person is involved, the time limit is 24 hours, 36 hours, 48 hours, 72 hours. Let us mark the answer. Now, question number 5. Under section 7(6), if a public authority fails to provide information within the stipulated time limit, the information shall be given. A, B, C, and D. Mark your answer, friend. Now, friends, मैंने ऐसा सेक्शन भी बांट दिया है, इससे आपको आसानी होगी. Section 2, we are going to ask question now, penalties, commissions, and service conditions. That is from question number 6 to 10. The maximum penalty that can be imposed on a public information officer under section 20A of the RTI Act is 5,000, 10,000, 15,000, or D, 25,000. Now, question 7. Under section 12(3), the Chief Information Commissioner of the Central Information Commission is appointed by the President of India on the recommendation of a committee headed by the Prime Minister. The Prime Minister in consultation with the leader of opposition, the Cabinet on the recommendation of the Law Minister, the Parliament through a resolution passed in both the houses. Now, which section of RTI Act deals with the exemptions from disclosure of information? Disclosure of information, exempted, non-exempted. Section 6, 7, 8, or 10. Now, question number 9. Under section 12(2), the Central Information Commission, CIC, can have a maximum of how many information commissioners, excluding the chief? दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है मैंने गलती कर दी थी. मैंने इंक्लूडिंग द चीफ बोल दिया था, वो एक्सक्लूडिंग द चीफ है. यहाँ पे थोड़ा सा आप संभल के करेंगे, जिनके पास पहले से इंफॉर्मेशन होगी. अब अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं आंसर के समय बताऊंगा. ये भी एक विवाद का प्रश्न हो सकता है. प्रश्न क्रमांक 10. एक्सक्लूडेड वर्ड है दोस्तों, एक्सक्लूडिंग. सो 1 प्लस और कितने हो सकते हैं? तो वैसे इसमें आपको उत्तर देने में आसानी होनी चाहिए, आप आसानी से दे सकते हैं ऑप्शंस के आधार पर. द सैलरी ऑफ चीफ कमिश्नर सेंट्रल अंडर सेक्शन 13(5) is equivalent to that of Judge of the Supreme Court, the Chief Election Commissioner, the Cabinet Secretary, or the Comptroller and Audit General of India. That is CAG. दोस्तों आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं. सर जी सर, एक बार शुरू से दिखा दीजिएगा, बीच में बाहर हो गया था तो कुछ क्वेश्चन छूट गए पहले से. अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है. प्रश्न क्रमांक 1 और 2 आपकी स्क्रीन पे, जिनका छूट गया देख सकते हैं. प्रश्न क्रमांक 3 और 4, प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 and 8. Here is 9, and we go for 10. Let us examine the answer. The very first answer is, everybody knows, B, 12th October. Question number 2, it's D, any reason for requesting the information. Third one, it's A, the Speaker of Lok Sabha. Fourth, it's 48 hours, equivalent to suspension, detention in the prison. Number 5, B, free of charge. अगर आप टाइमली नहीं दे पाए तो फ्री ऑफ चार्ज आपको देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन. Number 6, it's D, 25,000. Everybody knows it. Number 7, it's A, the President of India on the recommendation of Prime Minister, the Chairman. Number 8, it is Section 8. Number 9, it's D, 10. तो दोस्तों ये ऐसा रहेगा 1 + 10.
chief will be 1 and 10 will be information commissioner. Question number last for this section, it's B, chief election commissioner. तो चलिए दोस्तों 10 में से 10 प्रदीप साहब, श्रुति मैडम 9, सर क्वेश्चन नंबर 10 जो है देवांगन सर, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर चारों में से कोई भी नहीं होगा. Yes, as per the new changes made in amendment 2019. Yeah. I was reading Yes, and I was reading the group also, and somebody was saying ki, the tenure and the thing has been changed. So why it was not told when the discussion was going on? सर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना अमेंडमेंट कर दे एज पर आरटीआई एक्ट 2005 तो इसका आंसर बी हो जाएगा. अदरवाइज इसका आंसर कोई भी नहीं है. ओके फाइन. तो इसमें जो ऑप्शन है उसके आधार पर हमने अभी फिलहाल बी को आंसर मान लिया. चलिए तो अच्छे एज पर 17, 12, 13 इट्स करेक्ट. चलिए दोस्तों एक निवेदन मैं जरूर करूंगा, जब कभी भी कोई टॉपिक लिया जा रहा है, लेटेस्ट सर्कुलर आपके पास है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज शेयर इट. एक दिन पहले टॉपिक बता दिया. अगर आप पब्लिक वेलफेयर में मीटिंग के दौरान वो बात बताते हैं तो पब्लिक वेलफेयर में पहले क्यों नहीं बता देते, ताकि जो प्रेजेंट करने वाला है उन सब चीजों का समावेश कर दे. आई होप एवरीबॉडी एग्री विथ मी फ्रेंड्स. Sure sir, sure. Next time we will share anything which actually updated. यस सर, एक्चुअली क्या है, किसी भी एक के लिए सबको जानना, सब चीजों को जान पाना आवश्यक नहीं है. या से सपोज आई एम टेकिंग क्लास और यू आर टेकिंग क्लास, तो हमारे पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम विजिलेंट है, और एक्चुअली दिस इज ऑल इन पब्लिक इंटरेस्ट, दिस इज ऑल इन द सर्विस ऑफ ऑल द डिग्निफाइड टीचर्स. मुझे बुरा लगेगा यदि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ. ये जैसे अभी मैंने इग्नोरेंस के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दी. रियली आई एम गिल्टी ऑफ इट. No sir, your efforts are this will be commended as much as we can. सर इट्स अ कोइंसिडेंस कि अभी जस्ट थोड़ा सा क्लास से पहले टाइम मिल गया और गूगल पे सर्च कर रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएं, उसमें ये पता चला मुझे 2019 का और 23 का, वरना तो सर मैं भी बी लिख के आती. आई वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दैट जो आपने वीडियो भेजा है. जी थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू. लेट अस गो अहेड विद 11th क्वेश्चन. वैसे आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और हम समझते हैं कि इस क्लास में अभी जो हमने पढ़ा वो सब क्वेश्चन आ रहे हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फिर से एक बार तैनात हो जाइए. 10 मिनट में 10 प्रश्न. अभी जो टाइम हुआ है 21:48, तो 21:55 तक हमको ये 10 क्वेश्चन करना है. 5 मिनट में 10 क्वेश्चन, 30 सेकंड के हिसाब से. रैपिड राउंड. इफ एन आरटीआई एप्लीकेशन इज filed with the Central Assistant Public Information Officer (CAPIO), how many additional days are added to the response period? 5, 7, 10, 15 days. 12th, under section 19(3), a second appeal to the Central State Information Commission must be filed within 30 days of the first appeal decision, 45 days of the first appeal decision, 60 days from receipt of the decision, or 90 days from the date decision should have been made or was received. Question number 13. Under section 19(5), if any appeal proceeding, the burden of proving that denial of a request was justified lies upon. किस पर वो it lies? The applicant who filed the appeal, the first appellant authority, the public information officer who denied the request, the concerned public authority jointly with the PIO. I'll give 30 more seconds, friends. Looking to the complexity of the question. Just read it once more. I think decided. Shall I go? Shall I? Yes, sir. Okay. Question number 14, visible to you all on the screen. Section 22 of the RTI Act gives it an overriding effect over which of the following? Overriding effect देता है इनमें से किसके ऊपर? The Constitution of India only, the Official Secret Act 1923, and any other law for the time being in force. Only law enacted before 2005,
all central government acts but not state acts. किसे आप ओवरराइड नहीं कर सकते. 15. The RTI Act repealed which earlier legislation through section 31. ये बताया था मैंने रिवीजन के समय, सरल होना चाहिए. Now we will talk about exemptions, disclosure, obligations and severability. Under section 24, even for intelligence and security organizations listed in the second schedule, which information cannot be withheld. कौन सी ऐसी, चाहे इंटेलिजेंस हो चाहे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, विथहेल्ड नहीं कर सकते. इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू allegation of corruption and human rights violation, information related to budget allocation, personal and recruitment related information, information about ongoing security operations. Number 17, the term of office for the chief information commissioner. टर्म ऑफ ऑफिस देख लीजिए, अगर इसमें अभी गलती नहीं है या कोई करेक्शन नहीं है तो अभी हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार चलते हैं. इफ एनी अमेंडमेंट इज देयर दैट आल्सो वी विल कंसीडर. एस पर आरटी एक्ट 2005, इसको आंसर कीजिएगा. नंबर 18, अंडर सेक्शन 811 कैबिनेट पेपर्स एंड रिकॉर्ड ऑफ deliberations of the Council of Ministers are exempt. However, after the decision is taken and the matter is complete, what must be disclosed? Only the final order issued by cabinet, the decision, reason thereof, and the material on the basis of which decision were taken, the full minutes of the cabinet, या a summary of the proceeding prepared by the cabinet secretariat. अच्छा प्रश्न आ सकता है. नंबर 19, किसी दोस्त का माइक चालू है, कृपया बंद कर लें. अंडर सेक्शन 41B, एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट प्रोएक्टिवली पब्लिश 17 कैटेगरी. सबसे पहली बात मैंने बताई थी, 17 कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द एक्ट इनएक्टमेंट. 60, 90, 100, 120 डेज. और अंतिम प्रश्न, सेक्शन 10 of the RTI Act deals with severability. What does this provision require? इस provision में किस चीज की जरूरत पड़ती है? If a record consists both exempt and non-exempt information, access must be given to the non-exempt portion. A separate RTI application must be filed for each department of the same public authority. The PIO may split the request into multiple parts and respond to each separately. Different fees and charged for different types of information in the same application. दोस्तों आपने मार्क कर लिया होगा. आंसर की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, द राइट आंसर इज A, 5 days. मार्क करते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12, D, 60 days from the receipt of the decision. Question number 13, it's a C, public information officer who denied the request. Question number 14, B, the Official Secret Act 1923 and other law for the time being in force. Question number 15, it's D, the Freedom of Information Act 2002, the revision of Freedom Act 2002. Number 16, it's A, information pertaining to allegation of corruption and human rights. मैंने emphasis किया था इस बात पे. Number 17, the term of the office of Chief Commissioner. Friends, it is C, 5 years or until 65, whichever is earlier, within no reappointment, with no reappointment. Number 18, it's B, the decision, reason thereof, and material on the basis of which decision were taken. Friends, 19, it's D, 120 days. To minimize the RTIs.
And number 20, it's A for apple. If a record contains both 10 on 10 to आरपी साहब, टीना मैडम, अनीता मैडम, मोनिका मैडम, राजू साहब, मैं मोबाइल से जुड़ा, अशोक डावर साहब 8 नंबर, बहुत बढ़िया, रेनू मैडम 10 नंबर, ममता मैडम, अरे अंजू कुमारी 20, शर्मा मैडम 20 में से 20, जीनियस पीपल आर देयर, प्रदीप जी 20, आप दोबारा भी लिख दिया करें ताकि मैं फिर से पढ़ लूं। लक्की साहब 9 नंबर, वेरी गुड, 18 नंबर अनीता मैडम, गौरव गुप्ता साहब 20 नंबर, वेरी गुड गुप्ता जी, रेनू बाला मैडम 20 नंबर, टीना मैडम 19 नंबर, वेरी गुड, बी एन लकी साहब 19 नंबर। लकी साहब, होपफुली आई एम हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू in providing the information that is that you have been getting and you have been doing this. हालांकि आप सबने पहले से पढ़ रखा है, आप सभी विद्वान साथी हैं, आप आरटीआई को जानते हैं, आप सुन रहे हैं, ये मेरे लिए पर्याप्त है। डेफिनेटली सर, बहुत इंफॉर्मेशन आपसे मिलती है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच सर। देवांगन सर, 18 क्वेश्चन थोड़ा सा, सर सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, 18 क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा वो कर रहा था, क्या रिपीट कर सकते हैं 18 क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये बाद में करेंगे एंड में। 18 क्वेश्चन मुझे समझ में सा नहीं आया जैसे ना। अच्छा, कोई दोस्त इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 18, अंडर सेक्शन 811 कैबिनेट पेपर्स एंड रिकॉर्ड ऑफ deliberations of the council of ministers are exempt. ये जो exemptions है सर, however after the decision is taken and the matter is complete, what must be disclosed? जैसे ये दो चीजें होती सर हमारे सेक्शन अंडर 8(1) में, एक exempted एक नॉन exempted। तो ऐसे केसेस चल रहे, कैबिनेट पेपर एक्चुअली नॉन exempted में आते हैं। ओके सर। कैबिनेट पेपर और उसका जो रिकॉर्ड्स है वो exempted में आते हैं, लेकिन वो लिखा हुआ भी मिनिस्टर्स आर exempted। हाउएवर अगर कोई पेंडिंग डिसीजन चल रहा है, डिसीजन इज टेकन एंड मैटर इज कंप्लीट, अब उसके बाद कोई आरटीआई मांगता है उस पे, अब आप ये नहीं कहेंगे कि इट इज exempted बिकॉज द केस इज गोइंग ऑन, पेंडिंग केस इज ओवर। सो नाउ व्हाट यू विल प्रोवाइड, you will provide the decision, what is the decision taken, what is the reason of the decision, and the material on the basis of which, सबूत on the basis of which the decision was taken। ये इंफॉर्मेशन आपको आरटीआई में देना पड़ेगा, तब आप ये नहीं कहेंगे कि ये exempted है। ओके, रीजन आल्सो, यस सर, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। यस, क्वेश्चन नंबर 21, यस सर, क्वेश्चन नंबर 21 फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 8(2), even when exemptions under section 8(1) apply, a public authority may allow disclosure when, अभी जो प्रश्न किया आपने 18, ये उसी का काउंटर क्वेश्चन है। आप डिस्क्लोज कर सकते हैं when the applicant is journalist or researcher, the information is more than 10-year-old, public interest in disclosure outweighs the harm, public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest, the central government issues a specific notification permitting disclosure। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लीजिए, मैं चर्चा करके आपको समझा भी सकता हूँ। नंबर 22, अंडर सेक्शन 11, when a PIO intends to disclose information supplied by a third party वर्ड यहाँ पे आया है। Under section 11, when a PIO intends to disclose information supplied by a third party, within how many days of receiving the request must the PIO notify the third party? थर्ड पार्टी को वो इंफॉर्मेशन आ गया PIO के पास, कितने दिन में नोटिफाई करना पड़ेगा? 3, 7, 10, 5 days। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर सेक्शन 8(3), इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन इवेंट दैट अकर्ड मोर देन 20 years बिफोर, 20 साल पहले वो घटना घटी थी, the date of request must generally be provided, which exemption still apply even to such old information। भले 20 साल हो गया, 20 साल बाद कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे तो भी उस पर कौन सा रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन ये के तहत, सेक्शन ये के तहत, सेक्शन ये के तहत कोर्ट ऑर्डर की ट्रेड सीक्रेट्स या फॉरेन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ये बार्ड होगा कि सोवर्जिनिटी, सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड कैबिनेट पेपर बार हो। अभी कैबिनेट पेपर तो आप डिस्क्लोज कर रहे थे, याद कर लीजिए। पर्सनल सेफ्टी, लॉ एनफोर्समेंट एंड पर्सनल प्राइवेसी,
या फिर कंटिन्यू टू अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन? क्या बार होगा ये आपको देखना है। 24 नंबर का प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन? डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या नहीं आता अंडर सेक्शन 2F ऑफ द RTI एक्ट? क्या नहीं आता? हाइपोथेटिकल ओपिनियन नॉट हेल्ड बाय इन एनी रिकॉर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, लॉग बुक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स held by the public authority, data material held in any electronic form, या प्रेस रिलीज एंड सर्कुलर इशूड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। आप देख लीजिए कौन कौन से आते हैं, तो जो नहीं आता वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, एज फार एज MCQs आर कंसर्न, अंडर सेक्शन 13(5) द सैलरी ऑफ एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ। ये भी क्वेश्चन एम्बिगुअस हो सकता है। अकॉर्डिंग टू 2005 RTI एक्ट 2005 before amendment, the answer is this। आप मार्क कर लीजिए। चलिए अंतिम 5 प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। नंबर 21, it's a C, public interest in disclosure of outweighs the harm to the protected interest। Number 22, it's D, 5 days। Number 23, it's B, Section 81A, C and 1 says sovereignty, security, parliamentary privilege and cabinet papers। Number 24, question number 24, it's A, hypothetical opinion not held in any record by the public authority। ये इंफॉर्मेशन नहीं कहलाती है, बाकी सब इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। ये तो पहला प्रश्न होना चाहिए था, RTI में इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द आंसर इज एन इलेक्शन कमिश्नर। चलिए दोस्तों 25 में से कितने आए जल्दी बताएं। 5 अनीता मैडम को, प्रदीप जी को 24 नंबर, वेल डन प्रदीप जी। अंकुर जी 25, राजू जी 22, अनीता जैन जी 23, टीना जी, अंजू जी, हाँ अशोक साहब, मोनिका जी, मोनिका केवी, श्रुति मैडम, उपाध्याय साहब, निशा जी, अच्छा जितने में विपेश जी 18 नंबर, जितने में बलराम जी 23 नंबर है, हाँ RP अनंत, चंचल कालरा मैडम 22 नंबर, वेरी गुड। जितने में मैं एक का नाम पढ़ता हूँ दूसरे का नाम गायब हो जाता है। चलिए, so I hope friends you liked these MCQs, it must have enriched you, and if you say we will go ahead, otherwise 1 hour is over and this is the answers you can प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, प्रदीप जी माइक चालू करके कह दीजिए, इतना बड़ा पढ़ नहीं पाया और वो गायब हो गया। सर मैं कहना चाह रहा था कि जा रहा हूँ बच्चों की अब ऑनलाइन क्लास लेने, थोड़ा सा अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर योर मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए थे एंड आपके प्रीवियस क्लासेस को देख करके मैंने इस लायक हुआ कि 24 नंबर ले भी आया, सो थैंक्स फॉर दैट। एंड अब जो डिस्कशन आप करने वाले वो भी मैं अटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन बच्चों को 10 बजे का टाइम दिया था मैंने, तो मैं चाह रहा हूँ वो क्लास। प्लीज you are a hard working fellow friends, go, all the best। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू टू यू। नाउ फ्रेंड्स दीज आर द करेक्ट आंसर्स। हम इन आंसर्स को ऑप्शंस के साथ देख सकते हैं। ये PDF में देना इसलिए जरूरी है कि 10 दिन बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आप कहेंगे कि यार उत्तर कहाँ है, देवांगन सर ने दिया था जो, तो अब हम वो नोटबुक ना खोजे और यहाँ पे उत्तर मिले, इसलिए भी इन उत्तर को मैंने यहाँ पे दिया है। दोस्तों हम केवल अगले 10 मिनट तक चर्चा करते हैं। क्या आप सभी सहमत हैं, तैयार हैं, आगे बढ़े इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए? माइक चालू करके बोल दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। जी सर। If you are yet not bored, we will go ahead with interview questions and I would like you to please answer in crisp। ज्यादा डिस्कशन के बजाय हम क्रिस्प वे में आंसर देना चाहेंगे, और एक पार्टिसिपेंट एक बार आंसर देगा, उसको दोबारा मौका नहीं देंगे ताकि सबको बोलने का मौका मिले। वी आर लिमिटेड फ्रेंड्स हियर एंड एवरीबडी शुड गेट द अपॉर्चुनिटी। तो चलिए 2 प्रश्न मैंने डिस्क्लोज कर दिया है, जिसको जो प्रश्न पसंद आ रहा है चूज कर लीजिए, रेज योर हैंड एंड यू हैव टू आंसर, देन आई विल डिस्क्लोज द आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चन। क्योंकि कॉलम वाइज मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ताकि कम लगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया। और दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर द प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, 17 है, ऑब्लिगेशंस अंडर सेक्शन 4 ऑफ द RTI एक्ट। आप में से कौन उत्तर देना चाहेंगे दोस्तों? सर कैन आई? RP सर, सर आप कौन सा उत्तर देना चाहेंगे RP जी?
The first one. First one. What Okay, is the wait, sir. constitutional basis of the right to information in India? एक सेकंड आरपी साहब, एक सेकंड आरपी साहब। हाँ, प्रश्न 2 कौन उत्तर देना चाहेंगे अभी से बता दीजिए, ताकि इमीडिएटली सेकंड चालू हो जाएंगे आरपी साहब के बाद। जल्दी बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं देने लग जाऊंगा। आई विल नॉट वेट। कोई भी सर मांगीलाल सर ने ना हैंड रेज किया हुआ है जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन टू मांगीलाल जी, फर्स्ट क्वेश्चन टू आरपी साहब। आरपी साहब प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, वो पुराना हैंड रेज किया हुआ था, अभी नहीं किया, सॉरी। अच्छा, चलिए। तो फिर अंजू मैडम जो बोले वो कुंडी खोले। अब अंजू मैडम ने बोला तो वही आंसर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आरपी साहब। Sir, as the question is saying, the constitutional basis of the right to information in India. As we know, we are living in democracy. So in democracy, every person or the citizen are the masters and the government is the servant. So it is the right of master to know everything what his servant is doing. So this is the constitutional basis that every person is entitled to know what his government is doing. This is actually the constitutional basis, or the what to say. Yes, sir. This is the answer I want to say. Okay, आरपी साहब, योर आंसर इज एक्सपेक्टेड बेसिस पूछ रहे हैं ना, तो वो 2002 वाला उसका बेसिस बना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच। या एक मिनट सर, ये एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जी, बिल्कुल। वो बेसिस इसका बनेगा। नहीं, मतलब बेसिस का मतलब ये है सर, आपने जो आंसर दिया इट वाज अंडर करेक्ट आंसर। नो आंसर इज इनकरेक्ट हियर, बट हम कितना क्रिस्प और बहुत संक्षेप में कितना बोल सकते। हम जैसे 2002 फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात कर दे, यूनियन वाली बात कर दे, दैट विल बी एलर्ट। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर अंकुर साहब आप दे रहे, आपने हाथ ऊपर किया था। सर 1 का आंसर मैंने दिया था, एसपी गुप्ता वाला केस था ना ये। अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहते सर हैं? मैं दूं सर? यस सर। जी लक्की साहब। Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Sir, this is mandatory disclosure under section 4 of RTI, ना? इसमें जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो 17 कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई को रिड्यूस करने के लिए डिस्क्लोज करेंगी। जी बिल्कुल, ये इसके बारे में यहाँ यही मैं बताना चाहूंगा सर। बिल्कुल ठीक है सर। 17 कैटेगरीज आपने बोल दिया, मतलब पर्याप्त है। और यदि आप इसमें बता सके कि जैसे बजट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट एंड और भी कुछ चीजें आप बता सके, जैसे कितने समय पे पूरा होगा, टेन्योर कितना होगा, कितनी लागत आ रही है, ये सारी चीजें आप जब बता दें तो 17 कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग। तो चलिए दोस्तों, एक स्टैंडर्ड आंसर देखते हैं। सर इसमें 120 डेज भी मेंशन करना ठीक रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा कि 120 डेज आफ्टर इनेक्टमेंट। ये यस, ये देखिए इसमें आंसर में आपको लिखा हुआ भी है। तो देन उससे आपके आंसर में वजन पड़ेगा सर। एक्चुअली वहां पे मैंने बताया आपको, चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चेक करने वाले हो, चाहे आपके इंटरव्यू लेने वाले, वो सब घाघ लोग हैं एकदम। जैसे उदाहरण के लिए आप पीजीटी हिंदी हमारे बहुत सारे साहब लोग हैं, या पीजीटी इंग्लिश लोग हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया है गोदान के बारे में, कुछ प्रश्न पूछा गया है कि गोदान में वर्णित चरित्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। अब किसी बच्चे ने उत्तर लिखना चालू किया, प्रेमचंद कलम के जादूगर है, उन्होंने अपनी जादूगरी के माध्यम से उपन्यास गोदान में, इतना हमने पढ़ा और हम कहेंगे बस पगले रुलाएगा क्या अगर 11वीं का 12वीं का बच्चा है तो, कि भाई वो प्रेमचंद को जानता है, कलम का जादूगर है इसको जानता है, बस हो गया उत्तर। तो वैसे जब हम इस प्रश्न में जा रहे हैं और अच्छा बढ़िया हंसी आई मतलब सबको। चलिए, तो वैसे इस प्रश्न में जैसे ही हम कह दे कि देयर आर 17 थिंग्स दैट ही मस्ट डिस्क्लोज एंड दैट टू विद इन 120 डे, तो वो कहेगा बस इसको बहुत आता है भैया, इसको पूरा आता है, तो वो आगे डिस्कशन नहीं करेगा। और जब हम गोल मोल घुमा फिरा के जवाब देंगे तो वो डेफिनेटली ही विल गेट इनटू इट। चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। द राइट टू इंफॉर्मेशन फॉलोज फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a), जैसा कि आरपी साहब ने कहा था, Constitution guaranteeing freedom of speech and expression. The Supreme Court in S.P. Gupta and Union of India 1982 held that the right to know is an integral part of speech. आरपी साहब ने भी यही बात बोली थी। Essential for meaningful democratic participation. ये आंसर हो गया। आंसर 2 की हम जो बात करें ऑब्लिगेशन की, सेक्शन 4 की, तो क्या ऑब्लिगेशन हो जाएगा? सेक्शन 4(1)(b),
इतना ज्यादा सेक्शन याद भी नहीं हो तो चलेगा, हम डायरेक्टली भी लिख दें, इट रिक्वायर्स every public authority to voluntarily publish 17 categories of information including organization detail, budget, salary and PIO particulars within 120 days, and section 4.2 mandates maximum suo motu disclosure. suo motu disclosure, ये किसी ने अभी कुछ पूछा था क्या suo motu पे, या कोई कुछ बता रहा था क्या? suo motu disclosure so that the citizen have minimum resort to filling RTI application. suo motu क्या होता है actually? Let me tell you, self initiated publication of information by public authority. The public authority, जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई कॉन्ट्रैक्टर सड़क बना रहा है, तो आप देखते होंगे दोस्तों वहां पे बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का नाम, सड़क की लंबाई, इसकी लागत, ठेका प्रारंभ होने की तिथि, ठेका समाप्ति की निर्धारित तिथि, फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती, पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड। तो ये सेल्फ क्या बोलना चाहिए मुझे उसको, स्वतः संज्ञान सर, स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए आपको इन सब चीजों को डिस्क्लोज करना है। दोस्तों ये दो प्रश्न क्लियर है, मैं ऐसा हेलो क्या कहना जी? ये सुओ मोटो एक्चुअली लैटिन फ्रेज है, जब कोर्ट एक्चुअली अपना किसी चीज पे स्वतः संज्ञान लेके केस दर्ज कर देता है तो उसको सुओ मोटो बोलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने बोला था, सेल्फ इनिशिएशन, कि आपको खुद को अपने के सेल्फ इनिशिएटेड पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। करेक्ट सर, यू आर राइट सर, that is suo motu in case of RTI. Sir, can I also add? I'm sorry, I joined very late. Yes. So actually suo motu, you are expert of RTI. ऐसा नहीं है सर, but suo motu means कि without anybody prompting you to do something, आप अपने आप से ही वो चीज करोगे, तो वो suo motu है कि अपने आप से ही हमें बताना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें हैं। बिल्कुल, विदाउट बीइंग आस्क्ड, सेल्फ इनिशिएटेड, विदाउट बीइंग आस्क्ड। आपके पूछने से पहले, लोगों की पूछने से पहले ही आप 17 कैटेगरी में इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ताकि लोग उन 17 बातों के बारे में ना पूछे कम से कम, और उन 17 के अलावा उनको 18, 19, 20 चाहिए तो वो पूछ ले। दैट इज द पर्पस बिहाइंड इट। फ्रेंड्स, लेट अस, थैंक यू सानिया मैडम। नाउ द क्वेश्चन इज, आर द एग्जाम्पशंस, मैं चाहूंगा अंकुर जी, आरपी जी के अलावा दूसरे लोग उत्तर दें जिन्होंने पहले उत्तर नहीं दिया था। आप हाथ उठा ले दोनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो उत्तर देना चाहते। दोस्तों, लेट एवरीवन कम फॉरवर्ड प्लीज, डोंट बी सिंपली अ लिसनर, वी हैव ऑलवेज बीन अ लिसनर, व्हेनेवर देयर इज अ चांस बी अ स्पीकर। आर द एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द RTI एक्ट एब्सोल्यूट? और फिर दूसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 11 फॉर हैंडलिंग थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी पे बहुत डिस्कशन हुआ अभी। दिनेश पवार एंड बीएन लक्की हैव रेज्ड हैंड, दिनेश पवार जी और लक्की साहब, और कोई इनके अलावा? चलिए दिनेश जी उत्तर दीजिए। सर ये थर्ड वाले के लिए जो है सेक्शन 8(1) में फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं सर? फोर्थ वाला भी बोलूं क्या? नहीं, फोर्थ वाले के लिए लक्की साहब ने हाथ उठाया है, बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं। लक्की साहब, यू रेज्ड योर हैंड। एनीवन एल्स फ्रेंड? लक्की जी इज नॉट लिसनिंग। यस सर, इससे थर्ड पार्टी वाला है ना सर, फोर्थ क्वेश्चन में दिख नहीं पा रहा है सर मुझे क्वेश्चन ना। अच्छा, थर्ड पार्टी है सर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 11 फॉर हैंडलिंग थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। ओके सर, जब कोई फर्स्ट पार्टी इंफॉर्मेशन मांगती है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको जनरली तो विद इन 30 डेज इंफॉर्मेशन देनी है। अगर ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पर्सन से जुड़ी हुई है, तो 5 डेज मोर इट विल टेक, एंड फिर वो इंफॉर्मेशन वापस फर्स्ट पार्टी को देगा, सेकंड पार्टी। और सर ये थर्ड पार्टी की बात कर रहे थे, थर्ड पार्टी का मतलब जो इंफॉर्मेशन देनी है उसके बारे में है, उसके बारे में नहीं है जो पूछ रहा है कि फॉरेनर है या कौन है, क्योंकि RTI एक्ट जो है इट इज प्योरली फॉर citizen of India. Yes sir, that's all from my side sir.
यस सर। राजू राठौर जी, आपने अभी कुछ लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया, आप चाहे तो माइक चालू करके बोल सकते हैं सर, 10 सेकंड। राजू राठौर जी। पूछे बिना जो सूचना दे वही सेक्शन 4 का मान, जनता जाने हर व्यवस्था यही सुओ मोटो की शान। क्या बात है, क्या बात है राजू जी, बहुत बढ़िया। क्या बात सर, क्या बात। मतलब सर ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि भाई वो आशु कवि है, हिंदी के तो ज्ञाता है ही सही, आंसू कवि भी है। आंसू कवि मतलब ऐसा कवि जो सबके आंसू बहा दे, ऐसा नहीं है भाई। आंसू कवि मतलब होता है जो तुरंत कविता लिखते, है ना सर? इन्होंने सुओ मोटो का मतलब भी बता दिया और सेक्शन 4 भी याद करवा दिया हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीज आर द ट्रिक्स फ्रेंड्स वी नीड, दीज आर द ट्रिक्स। राजू जी, आप इस बात को जो आपने बोला उसे लिख के भी डालिएगा ग्रुप में। बहुत बढ़िया राजू जी। चलिए, हाँ, ये are the exemptions under section 8(1) of the RTI Act absolute? No. Most are qualified. Section 8(2) permits disclosure even of protected information when public interest is disclosure. आप जो बोल रहे थे दिनेश जी, वो बिल्कुल अलग बात थी। हम सेक्शन 8(1) की जो बात करें वो बिल्कुल अलग बात है। यहाँ पे जो बात हो रही है 8(1), याद रखना आप, इसमें एग्जम्प्टेड नॉन एग्जम्प्टेड की बात है। नंबर 8 एग्जम्प्टेड नॉन एग्जम्प्टेड। तो हम पूछ रहे हैं आर द एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द आरटीआई एक्ट एब्सोल्यूट, कि बिल्कुल वो एग्जम्प्टेड ही रहेगा, उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं बाहर निकलेगी, कुछ भी नहीं बताएंगे। तो आंसर है नो, मोस्ट आर क्वालिफाइड। उनमें से एग्जम्प्टेड में से क्वेश्चन को समझ नहीं पाया और जल्दी कर दिया मैंने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। बॉल ओवर पिच थी और आप आगे बढ़ गए, इसीलिए विकेट कीपर ने पकड़ लिया सर, है ना। चलिए ठीक है दिनेश जी। तो सेक्शन 8(2) permits disclosure of even protected information when public interest in disclosure outweighs the harm. सेक्शन 8(3) मैंडेट, सेक्शन 8(3) हमको मैंडेट करता है, आदेश देता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर 20 years old subject to clauses A, C, I, and the provisions to section 8(1)(j) states that information not deniable to parliament cannot be denied to any citizen. जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो आप किसी सिटीजन को भी डिनाई नहीं कर सकते। प्रश्न क्रमांक 4, द पीआईओ मस्ट नोटिफाई द थर्ड पार्टी विद इन 5 days। 5 दिन में थर्ड पार्टी को आपको इंफॉर्मेशन देना है, रिसीविंग द ऑफ द 5 days ऑफ द रिसीविंग ऑफ द रिक्वेस्ट। इनवाइट देयर रिटर्न और ओरल सबमिशन विद इन 10 days एंड डिसाइड विद इन 40 days। द थर्ड पार्टी इज इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर राइट टू अपील अंडर सेक्शन 19 with public interest overriding even trade secrets in appropriate case। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आगे केवल मैं क्वेश्चन बता देता हूं, जिसके आंसर्स आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। आप प्रयास करें दोस्तों, जब भी आप पढ़ भी रहे तो केवल इतना ही ओपन करके खुद उत्तर देने का प्रयास करें। नहीं दे पाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं दे पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर से सुनिए, उत्तर दे पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे पाते तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, तभी आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और इस तरीके से दोस्तों, इसका उत्तर आप ब्लॉक में, 2-2 के ब्लॉक में आप इन सब के उत्तर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जो आपकी थ्योरी में भी काम आएंगे और जो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में और इंटरव्यू में भी। सर, इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। Definitely, it is always and every day shared just after an hour of the class. Right, for your perusal, you can get it into the group. Thank you, friends. That's all for today. And tomorrow we will be coming with Madam Anju Sharma. She will be taking the charge of child pedagogy. Friends, it's a new section, new chapter. Inform all other friends. सर, अंजू शर्मा मैडम की तबीयत ठीक नहीं है सर। हाँ सर, सुन रहा हूँ। अंजू शर्मा मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि जो आप कल ले लो और उसके नेक्स्ट डे वो लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। तो कल आंगीलाल सर ही ले रहे हैं, परसों मैं ले लूंगी। कल आप पीडब्ल्यूडी का टॉपिक ले रहे हैं, लेकिन हम क्लास में ब्रेक नहीं आने देंगे। बिल्कुल, दैट्स द थिंग। दैट्स मांगीलाल साहब, आप पीडब्ल्यूडी वाला ले रहे हैं? यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आपके क्वेश्चन है तो एक बार ग्रुप में डाल दें, ताकि मैं वो क्वेश्चन भी साथ में
टाइम रहेगा तो इंक्लूड करेंगे, नहीं रहेगा तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन है एडवांस में डाल दीजिए। मांगीलाल सर, मैं आपको ना इंक्लूसिव एजुकेशन भी भेज दूंगी इसी के साथ कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, मेरे पास मटेरियल नहीं है प्रिपेयर किया हुआ, करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं सर, फिर हम आप पहले अपना कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन का मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, ओके, एक टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा फिर अपना। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन हो किसी के तो वो ग्रुप में डाल दीजिए, मैं पहले एक दिन बैठ के कंपाइल कर लूंगा कल दिन में। Sir, whenever you want to, yes sir, everybody is welcome and I always have requested you, आप पहले से अपना टॉपिक तैयार कर लीजिए 100% और उसके बाद में आप डेट बता दीजिए ताकि हम साथियों को पहले से अनाउंस कर दें। एक दिन पहले से पता रहे कि इस टॉपिक पे होने वाला है तो वो सभी तैयार कर लेंगे और पढ़ाई करके आएंगे। सो टुमारो वी विल गो अहेड विद PWD टॉपिक विद श्री मांगीलाल साहब and he will be dealing with us. Friends, be on time and keep learning, keep watching the channel. Videos are there, PDFs are there. Thank you. Have a nice day. See you in the next meeting. Sir.